Good evening, students. Welcome to this video for Unit 4th Professional Writing. In this unit, we are going to deal with topic number 2, job application with CV. As you all know, these videos are exclusively made for students of Polytechnic Diploma courses studying in first semester of first year. This year the syllabus has changed and this part has been added, professional writing. It is very important part in our course because it deals with this topic that is very helpful for the students in their future. Whenever the students will apply for any good job, they need to apply with a CV along with a job application. As you all know that whatever vacancy the companies have, they generally advertise for those vacancies in the newspapers or that is available on their websites. So whatever the source is, whether it is an advertisement or it is available as a link on the website, you need to apply through a job application and CV. So let's know about what these two things are. First of all, job application, and then we'll learn about CV. These are the important contents here and I'm going to read it for you. Here we go. Unit 4, topic number 2, job application with CV. What is job application? Employment application means the letter written for getting a job. It is the primary means of introducing the job seeker to the employer. Through the job application, job seeker offers his or her labor and service for a return. Therefore, the application for employment acts as a personal advertisement. Job application contains appeal for the job along with the job seeker's personal data like name, address, qualification and experience. यहां तक जो मैंने आपसे बात की है उसमें मैंने अब तक ये कहा है आपसे कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्रोफेशनल राइटिंग के अंडर आता है और टॉपिक जो दिया गया है उसका नाम है जॉब एप्लीकेशन विद सीवी। इस टॉपिक में पहली चीज जो हम जानेंगे वो है कि एक जॉब एप्लीकेशन क्या होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो एप्लीकेशन जॉब लेने के लिए यानी कि जो लेटर है जो जॉब लेने के लिए लिखा जाता है उसे जॉब एप्लीकेशन या एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन
कहते हैं। ये बेसिकली आपका परिचय करवाने के लिए है आपके एम्प्लॉयर से जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है। इसके थ्रू जो जॉब सीकर होते हैं, सीकर का मतलब होता है ढूंढने वाले, जॉब हंटर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो लोग अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं कंपनी को। इसीलिए जो एप्लीकेशन लिखी जाती हैं वो एक तरह का आपका व्यक्तिगत विज्ञापन हो गया, नथिंग बट अ पर्सनल एडवर्टीजमेंट। और जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है, आप जॉब के लिए जो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपका डेटा होता है, आपकी सूचना होती है, जैसा कि नाम, पता, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता और एक्सपीरियंस आपका अनुभव। एग्जाम में एक क्वेश्चन आजकल आता है कि राइट अ जॉब एप्लीकेशन विद सीवी फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो आपको एक बता दिया जाएगा कि मान लीजिए यू आर अजय, यू लिव इन शास्त्री नगर जयपुर, you have seen an advertisement in the Dainik Bhaskar for the post of school teacher to teach mathematics. Write a job application with CV for the post. तो ऐसे में आपको ये देखना है कि आपको उसमें क्या क्या चाहिए। यही बस जॉब एप्लीकेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे कि उसको लिखा कैसे जाता है, हाउ डू वी राइट इट। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट दोज पीपल हु अप्लाई फॉर एनी जॉब, they are also not aware of the fact that there is a difference between a resume, a CV and a biodata. इन तीनों में अंतर होता है। रेज्यूमे एक अलग चीज है, सीवी एक अलग चीज है और बायोडेटा एक अलग चीज है। टेक्निकली इनमें कुछ अंतर हैं। वो अंतर क्या है, देखिए एक छोटी सी चीज यहां पर दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखा हुआ है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होती है, यानी कि शब्द के बारे में बताया जाता है कि वो शब्द कहां से लिया गया है। रेज्यूमे इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग समरी। बेसिकली रेज्यूमे का मतलब होता है संक्षेप में, शॉर्ट में किसी चीज को बताया जाना। और रेज्यूमे इज आइडियली अ समरी ऑफ one's education, skills and employment when applying for a new job. यहां पर आप अपनी एजुकेशन, आपकी स्किल्स यानी कि कौशल, जो आपके अंदर कुछ कौशल हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट आपके पास है, जो भी उन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप उनकी समरी लिखते हैं नई जॉब में अप्लाई करने के लिए। A resume doesn't list out all details of a profile, but only some specific skills customized to the target job profile. सारी की सारी चीजें उसमें नहीं होती, केवल कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक, कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स उसके अंदर होती हैं जो कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर चाहिए होती हैं, जिनकी वहां रिक्वायरमेंट होती है। इट दस इज यूजुअली 1 और एट द मैक्स 2 पेजेस लॉन्ग। ये सामान्यतः या 1 पेज का होता है या ज्यादा से ज्यादा
ये 2 पेज का हो सकता है, बट जनरली 1 पेज एक कवर कर देता है छोटी मोटी जो आपकी चीजें हैं, क्योंकि बहुत कुछ इसमें नहीं बताना होता। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, a good resume would start with a brief profile of the candidate, summary of qualifications, followed by industry expertise, and then professional experience in reverse chronological order. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि बेसिकली जो भी आपने पहले किया है उसे आप पहले डालें और बाकी चीजें बाद में डलती जाएंगी। फोकस इज ऑन द मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंसेस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकम्प्लिशमेंट्स, एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आर ओनली प्रेजेंटेड एज अ समरी। जो फोकस होता है वो अभी जो रिसेंट आपने एक्सपीरियंस लिया है, जैसे मान लीजिए अब आप 2021 में 2021 में इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सम पोस्ट, तो आप 2019-20 का जो जॉब था आपका उसे पहले लिखेंगे, फिर 2016 का लिखेंगे, फिर अगर कोई 2010 में किसी ने कोई जॉब किया है तो वो लिखेगा। आज तो आप एज ए स्टूडेंट सुन रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब भी आप अप्लाई करें, जब आप किसी जॉब में चले जाएं और आपको दूसरी जॉब स्विच करनी हो, तो उस समय भी आप रेज्यूमे या सीवी का यूज डेफिनेटली करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार समराइज करके देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 पेजेस होते हैं। इंपॉर्टेंट की रिसर्च एरियाज या ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स, ज्यादा से ज्यादा पिछले 10 सालों का, खासकर वो भी हम जैसे एक्सपीरियंस लोगों के लिए आप 10 सालों का अपना अचीवमेंट लिख सकते हैं। ओनली इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस के बारे में बता सकते हैं, आपका थोड़ा एजुकेशन बता सकते हैं, आपकी कुछ हॉबी और जो इंटरेस्ट है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आप बता सकते हैं। हॉबीज और इंटरेस्ट में अंतर होता है, मैंने काफी बार बताया है स्टूडेंट्स को। टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला जो वीडियो था, जो ऑडियो था मतलब क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब भी आप अपने बारे में कोई आंसर दें जहां पर आपके बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखें कि हॉबी और इंटरेस्ट में एक डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप अपने रिप्लाई को वहां दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको अच्छे से जान लें कि वो डिफरेंस क्या क्या होते हैं। नाउ अगला वर्ड आता है करिकुलम विटे, यानी सीवी, जिसे हम शॉर्ट में कह रहे हैं। एटिमोलॉजी, करिकुलम विटे इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग कोर्स ऑफ लाइफ। ये एक तरह से जीवन का एक पूरा डिटेल समरी है। यहां तो सिर्फ एक हमने शॉर्ट समरी की बात की है, लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो इसका स्ट्रक्चर जो बन जाता है, जैसे ये स्ट्रक्चर हमने यहां बात की है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहां देखें बेसिकली, तो ये थोड़ा सा एक अलग चीज होती है। योर सीवी इज मोर डिटेल्ड देन अ रेज्यूमे, यानी ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में होता है, इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहां पर दी जाती हैं। क्या क्या डिटेल्स हो सकती है? देखिए, ये जनरली 2 से 3 पेज का होता है, और बहुत सारे लोगों के तो इतने बड़े बड़े सीवी होते हैं कि वो 10-10 पेज तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सीनियर प्रोफेसर की बात करें तो उनका सीवी कम से कम 5 या 6 पेज से कम नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा वर्क उन्होंने कर लिया, इतना सारा रिसर्च वर्क उन्होंने कर लिया, इतने सारे पेपर्स उन्होंने लिख डाले। तो ये सारी चीजें हाईलाइट करने में, डिग्रीज को बताने में, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बताने में बहुत कुछ होता है। सीवीज टॉक अबाउट योर एंटायर कैरियर, ये देखिए आपके पूरे करियर के बारे में ये बताता है। एवर सिंस यू ग्रेजुएटेड, जब आपने अपना ग्रेजुएशन किया था, स्नातक जब आपने अपनी ली या बीटेक वगैरह जो फाइनल ईयर किया, उसके बाद से जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, सब कुछ इसके अंदर जुड़ता चला
जाता है, ये डिटेल्ड होता है। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि बेसिकली जब क्वेश्चन दिया जाता है तो वो लोग सीवी लिख देते हैं, जॉब एप्लीकेशन विद सीवी। बट अभी बात हो रही है कि सीवी में तो एक्सपीरियंस डालना चाहिए। तो वापस मैं आपको बता रहा हूं, आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुने कि ये एक तरह की एक मिस्टेक कही जा सकती है, क्योंकि बेसिकली आप रिज्यूमे ही लिखेंगे। एज ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए फ्रेशर के हिसाब से ये चीज आएगी, तो आपको रेज्यूमे ही लिखना होगा। सीवी जो है ये तो सिर्फ गलती से इन लोगों ने इस वर्ड को चला दिया है जो क्वेश्चंस ये लोग देते हैं। अदरवाइज सीवी तो एक बहुत डिटेल्ड चीज है। तो आप उसको आप हेडिंग चाहे तो एग्जाम के हिसाब से सीवी लिख के आ सकते हैं, चाहे रेज्यूमे लिख सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। बट मैं फर्क आपको जो बता रहा हूं वो यही है कि सीवी लेंदी होते हैं, रेज्यूमे थोड़े छोटे होते हैं। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो पहली चीज आती है वो है नो लिमिट्स ऑन द पेजेस। पेजेस की कोई लिमिट नहीं है। लिस्ट इंपॉर्टेंट KRAs एंड OKRs फ्रॉम द एंटायर टेन्योर। आपका जितना भी अब तक काम रहा है उसमें जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीजें की हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। ऑल स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस, जितनी भी आपने स्किल डेवलप अपने अंदर की है वो आती हैं। सर्टिफिकेशन जो शायद अब काम नहीं आ रहे लेकिन फिर भी आप उन्हें सीवी की लेंथ बढ़ाने के लिए डाल सकते हैं। कस्टमाइज्ड फॉर अ लार्जर ऑडियंस एंड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन। जनरली ये बहुत एक अलग स्तर पर जाता है, तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उस चीज को समझने के लिए बैठे होते हैं और वही इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। रिटर्न इन अ फर्स्ट, न्यूट्रल और थर्ड पर्सन टोन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया आई, और न्यूट्रल का मतलब हो गया जिसमें कोई पर्सन नहीं दिख रहा, और थर्ड पर्सन का जो मतलब होता है वो ही, शी, इट, इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, नेशनैलिटी, हॉबीज, डिक्लेरेशन, शॉर्ट बायोग्राफी, एजुकेशन डिटेल्स, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने यहां पर दी हुई हैं, ये सारी चीजें मतलब आपके इस सीवी में कवर होती हैं। एंड लास्ट जो पार्ट है इसका, हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बायोडेटा की। बायोडेटा जो होते हैं ये भी इंडिया में एक अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये होता कुछ और है। बायोडेटा is the short form for biographical data and is an archaic terminology for resume और CV। तो जैसा कि यहां एटिमोलॉजी में आपको क्लियर है कि बायोडेटा शॉर्ट फॉर्म होती है बायोग्राफिकल डेटा की, और जिसे रेज्यूमे या सीवी के रूप में बहुत सारे लोग मानते हैं। This term is mostly used in India by people who started their careers back in the 60s, 70s and 80s। Basically, जिन लोगों ने 60 के दशक में, 70 के दशक में और 80 के दशक में अपना करियर शुरू किया, उन लोगों ने ये जो टर्म है ये बायोडेटा, इसे एक तरह से जॉब के लिए माना कि जब जॉब में हमें कहीं जाना होता है तो हमारी डिटेल्स जो है बायोडेटा में लिखी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले सीवी या रेज्यूमे को बायोडेटा कहा जाता था। सिंस इट इज एन आर्किक टर्म, आर्किक का मतलब होता है ओल्ड, पुरानी। Biodatas are not used in a career-oriented field anymore। तो अब इनका यूज इतना ज्यादा नहीं किया जाता। Our parents used to share their biodata
when they would go for interviews back in the 70s। शायद हमारे माता पिता ने इसको यूज किया होगा, खासकर मेरे माता पिता ने। आपके माता पिता तो अभी आप स्टूडेंट हैं, बहुत यंग हैं, तो शायद उन्होंने भी इसको यूज नहीं किया होगा, क्योंकि 90s के आसपास उन्होंने कहीं अप्लाई किया हो। तब मैं नहीं समझता कि सीवी और रिज्यूमे तो आ चुके थे, तो बायोडेटा इतना पॉपुलर रहा होगा। लेकिन 60, 70 और 80 के टाइम पे जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्होंने बायोडेटा ही लिखा था। नाउ अडेज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। नाउ अडेज बायोडेटा हैज अ रेफरेंस मोस्टली इन केस ऑफ अरेंज्ड मैरिजेस वेयर पेरेंट्स आस्क फॉर इट फ्रॉम द अदर पार्टी। आजकल जब रिश्ते होते हैं लड़का लड़की के, तो वहां पर बायोडेटा मंगवाया जाता है। वहां पर कहा जाता है कि भाई लड़के का बायोडेटा भेज देना, हम जरा उसके बारे में जान लें, तो आगे हम अपनी लड़की का भी बायोडेटा आपको दे देंगे। इन अ बायोडेटा द फोकस इज ऑन पर्सनल पर्टिकुलर्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, रेजिडेंस, मैरिटल स्टेटस एंड सो ऑन। इस तरह की चीजें उसमें ज्यादातर दी जाती हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ पे फोकस होता है, जेंडर पे फोकस होता है, आपके धर्म पर फोकस होता है, आपकी नेशनैलिटी पर, यानी आप कहां से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें उसमें ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो ये सब चीजें बताई जाती हैं, इसलिए इसका जो महत्व है वो इसी तरीके से आप समझें कि वो कहां काम आ रहा है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बायोडाटा नहीं लिखना है। भाई अच्छी सी जॉब लो, अच्छा सा एक अपना सेटल हो जाओ, सीवी और रेज्यूमे देकर कहीं अच्छी जगह जॉब पर लग जाओ, उसके बाद एक बढ़िया सा बायोडाटा बनाओ और अच्छी सी शादी करो और लाइफ को एंजॉय करो। तो बायोडाटा लिखना भी मैं सिखा रहा हूं आपको, सो दैट अच्छी मैच आपको मिल जाए, लड़कियों को अच्छे लड़के मिल जाए, लड़कों को अच्छी लड़की मिल जाए, परिवार को एक अच्छा दामाद मिल जाए, एक परिवार को अच्छी बहू मिल जाए। लेकिन उससे पहले एक कंपनी को एक बड़ा अच्छा सा, बड़ा एडुकेटेड सा, बड़ा समझदार सा एम्प्लॉय मिल जाए, ऐसी मेरी तमन्ना है। बायोडाटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट से देख लेते हैं। कोई लिमिट ऐसा नहीं है, वही डिपेंड करता है कि क्या लिखा है आपने, किसके बारे में लिखा है। आजकल बेसिकली मैरिजेस के लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट या थर्ड पर्सन टोन में ही, शी, इट के साथ भी यूज किया जा सकता है। एजुकेशन और एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी। अब सिर्फ थोड़ा एक्सपीरियंस, एजुकेशन एक्सपीरियंस तो खासकर मैंडेटरी नहीं है, बट एजुकेशन इज मैंडेटरी। ये बल्कि मैं कहूंगा कि आप एजुकेशन तो मैंडेटरी है, बट एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी। कि आपने कहां काम किया है वो चीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि एक पति के रूप में मैंने पहले सर्विस वहां पर की थी, तो वो एक अलग चीज बनती है। देन सैलरी डिटेल्स, जनरली जब आप मैट्रिमोनियल पर्पस के लिए लिख रहे हैं, आप शादी विवाह के लिए अगर आप अपना बायोडाटा दे रहे हैं, तो वहां पर सैलरी भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि आप बताएं। समरी अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, रेज्यूमे उन लोगों के लिए जिनको अभी बहुत एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जो फ्रेशर के रूप में अप्लाई कर रहे हैं। सीवी बेसिकली जिनकी बहुत डिटेल्स हो गई है एजुकेशन से रिलेटेड, खासकर सीवी भी वहां चलता है जहां एजुकेशन और एकेडमिक पर्पस के लिए सीवी लिखे जाते हैं, या किसी कंपनी के सीईओ के लिए। फॉर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जॉब एप्लीकेशन, हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उसमें पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, फिर क्वालिफिकेशंस डालते हैं, फिर एक्सपीरियंस डालते हैं और फिर रेफरेंसेस डालते हैं। तो अभी के तो इस वीडियो में आज मैं इतना ही आपको बताने वाला हूं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन की, और ये जो टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन की, और वो उन्हें हम लिखना भी सीखेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय पर आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन्हें मिस ना करें। थैंक यू सो मच।